Good morning, students. We were discussing control and coordination chapter of 10th class science, and under this chapter we have discussed about control and coordination in animals. Today we will discuss about coordination in plants. Plants do not have nervous system as animals to control and coordination. Then how plant coordinate? Plant coordinate with the help of certain chemicals that are called plant hormones. And what are plant hormones? These are the chemicals that are produced in one part of plant and migrated to other parts of plant to control various activities. ऐसे chemical substance जो पौधे के एक भाग में प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे भाग में जाते हैं और अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. जैसे प्लांट ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को प्रोमोट करेंगे, फ्रूटिंग को प्रोमोट करेंगे, उनकी ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे कि भाई प्लांट जो है लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, रूट जो हैं वो सोइल की तरफ ग्रो कर रही हैं या रूट वाटर की तरफ ग्रो कर रहे हैं. दीज आर वेरियस ट्रॉपिक मूवमेंट्स and other activity that are controlled by certain chemicals that are produced in different parts of plant are called plant hormones. They also regulate the growth of plant, so they are known as plant growth regulators. These phytohormones and plant growth regulators are divided into two categories. One that promote the growth of plant are called plant growth promoters. They promoting certain activities like cell division, cell elongation, flowering, fruiting and seed formation. And plant growth promoter include auxins, gibberellins and cytokinins. And the other group of plant hormones that inhibit the growth of plant, जो plant की growth को inhibit करते हैं, that are called plant growth inhibitors. They promote the various inhibiting activities such as dormancy and abscission that take part in response to wounds, stress of biotic and abiotic factors, and they also enable plant to survive in stressful conditions. Under plant growth inhibitor they include abscisic acid and ethylene. Now we will discuss about these plant hormones separately, as plant hormones include auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene. Now first we will discuss about auxins. Auxins were discovered by Charles Darwin and his son Francis Darwin. Auxins are mainly classified into two groups. One is natural auxins that are isolated from the plants. For example, indole acetic acid IAA and indole butyric acid IBA. नेचुरल ऑक्सिन वो हैं जो नेचुरली प्लांट से प्राप्त किए गए हैं. दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली. दे आर कॉल्ड नेचुरल ऑक्सिन्स. एंड नेचुरल ऑक्सिन्स आर टू indole acetic acid and indole butyric acid. And the other group of auxins were those auxins that are synthesized artificially, and they include NAA, naphthalene acetic acid and 2,4-D. 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ये जो इंक्लूड किया गया ये 2,4-D मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में याद रखना. इट इज ए सिंथेटिक ऑक्सिन्स दैट इज यूज्ड एज हर्बिसाइड. ये हर्बिसाइड के रूप में यूज किया जाता है. दैट मीन इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द डाइकोट वीड्स इन मोनोकोट क्रॉप. मोनोकोट क्रॉप में डाइकोट वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स. What are the various roles that are played by auxins? Auxin help in the cell elongation, cell division and promote the apical growth of plant. Plant की apical growth के लिए responsible है. Apical growth mean it is responsible for the length growth of the apex. Apex mean shoot tip.
शूट टिप जो है, शूट टिप जो दैट इज एपिक्स एंड दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, मीन्स इट इज फॉर्म्ड इन द एपिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट। सबसे ज्यादा ऑक्सीन किस में प्रोड्यूस होगा? एपिकल पार्ट में, जहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। एंड व्हेन द एपिकल ग्रोथ इनहिबिट द लेटरल ग्रोथ, एपिकल बड जो है वो लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, उसी को एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं, जैसा चाय के पौधे में होता है। और एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करने के लिए जो एपिकल बड होंगी उन्हें रिमूव कर दिया जाता है ताकि लेटरल बड जो हैं वो ग्रो हो सके। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज ऑक्सिन प्रोमोट द फ्रूट ग्रोथ। ये फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रोमोट करेगा। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल द ट्रोपिक मूवमेंट। And what are tropic movements? Tropic movements are the directional movements in response to a particular environmental stimuli. It involve growth. Means पौधे का एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ पौधा जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ बैंड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट। पौधे की वो मूवमेंट जो किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं, दैट आर कॉल्ड tropic movements, and these tropic movements are controlled by auxin. Auxin also promote the growth of stem. ये stem की growth के लिए responsible है but inhibit the growth of root. stem की growth को तो promote करेगा लेकिन root की growth को ये क्या कर देगा? inhibit कर देगा। Understand? And one more thing about auxin. Auxin also used to produce seedless fruit like in tomato. And these are called parthenocarpic fruits. ऑक्सीन की मदद से हम बिना बीज वाले टमाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवेरी विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एंड वन मेजर एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक auxin, that is 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid to kill the dicot weeds to prepare weedless lawn. जो लॉन या पार्क के अंदर हम घास लगा देते हैं, उस घास के अंदर जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होती है, वीड होती है, उसे रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक सिंथेटिक ऑक्सिन होता है, दैट इज कॉल्ड 2,4-D. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स ऑल्सो नोन एज जिब्रेलिक एसिड. And the major role of gibberellic acid that they cause increase in the length of axis. ये एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज कराते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे गन्ना होता है, गन्ने के अंदर जो सर्कुलर रिंग बनी होती है दैट आर कॉल्ड नोड, और दो रिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। अंडरस्टैंड? अब ग्रेप जो है, अंगूर जो आप खाते हो, अंगूर की अगर स्टाक इलोंगेट होगी, अंगूर की स्टाक जो है जिसके ऊपर ये अंगूर अटैच होते हैं वो लंबी होगी तो अंगूर का प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर वो छोटी होगी तो उसके ऊपर नोड नज़दीक नज़दीक होंगे, नोड नज़दीक होंगे तो नज़दीक नज़दीक अंगूर जो हैं वो अटैच होंगे। जितना कॉम्पैक्टली अंगूर जितना नज़दीक नज़दीक होंगे ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में आएंगे और अंगूर छोटे रह जाएंगे, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर स्टाक लंबी होगी तो जो नोड हैं वो उनके बीच में डिस्टेंस होगा और नोड से जो अंगूर डेवलप होंगे उन अंगूर में प्रॉपर ग्रोथ होगी एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप वुड बी इंक्रीजेस. एंड जिब्रेलिन ऑल्सो यूज टू enhance the production of sugarcane, and with the help of gibberellin we can increase the production of sugarcane up to 20 tons per acre. एक एकड़ में 20 टन तक हम सुगरकेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. जिब्रेलिन ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द शेप ऑफ फ्रूट सच एज एप्पल. एप्पल जो है उसकी शेप को इम्प्रूव करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? जिब्रेलिन का. एंड वन मोर important function of gibberellin that it helps in breaking of seed dormancy and bud dormancy. ये bud और seed dormancy के breaking में भी help करता है. and they delay the senescence. जिब्रेलिन जो है ये senescence को डिले कर देता है. और what is senescence? senescence मीन परिपक्वता. जैसे कोई भी प्लांट है वो प्लांट ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद उसके पार्ट मेच्योर हो जाते हैं. मेच्योर होने के बाद जब उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है एंड दे
स्टार्ट्स टू टर्न्स येलोइंग, वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस। जैसे पत्तियां ग्रो होने के बाद वो मैच्योरेशन पे आ जाते हैं, उनके अंदर सेनेसेंस आना शुरू हो जाता है, मीन्स वो पकना शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ में? और जब सेनेसेंस डिले होगा, व्हेन द सेनेसेंस डिले दे कैन एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, ये मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज करो हमने टमाटर की फसल लगाई है, अब टमाटर की फसल में फिलहाल जो है वो सेनेसेंस पे आ रखे हैं टमाटर, यानी पकने वाले हैं, सारे लाल होने वाले। पकने के बाद टमाटर जो हो वो ग्रीन से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, इट टर्न्स इनटू रेड। अब सपोज करो लेकिन अभी जब ये सेनेसेंस पे आ रखे हैं, अभी पकने वाले, और अभी मार्केट में इसका प्राइस कम है, और हम सोच रहे हैं कि 10 दिन बाद प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, देन वी विल स्प्रे जिब्रेलिन, तब हम जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे। और जिब्रेलिन के इफेक्ट से दीज टमाटो डू नॉट रैपिडली राइपन्स, ये रैपिडली राइपन नहीं होंगे, और रैपिडली राइपन नहीं होंगे दैट मीन द सेनेसेंस गोट डिले, सेनेसेंस डिले हो जाएगा एट एंड इट एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, और हम इसे 10 दिन बाद सेल कर सकते हैं, दैट मीन मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइटोकिनिन, एज इट्स नेम सजेस्ट दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकिनेसिस। सेल के डिवीजन को या साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस बोलते हैं। एंड दे आर मेनली प्रेजेंट वेयर द रैपिड सेल डिवीजन अक्कर, दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, ये नई लीफ प्रोड्यूस करने में मदद करता है और उन लीफ में क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगा। एंड इट ऑल्सो प्रोमोट द लेटरल शूट ग्रोथ, ये लेटरल शूट ग्रोथ, लेटरल का मतलब होता है साइड बाय साइड, जैसे प्लांट इलोंगेट कर रहा है। ऑक्सिन तो एपिकल ग्रोथ को प्रोमोट करता था, लेकिन साइटोकिनिन क्या करता है, लेटरल ग्रोथ को प्रोमोट करता है। आई बात समझ में? सो इट हेल्प इन ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम होने में हेल्प करेगा। इट ऑल्सो प्रोमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि प्लांट के ओल्डर पार्ट से न्यूट्रिएंट्स का माइग्रेशन हो जाना यंगर पार्ट में, व्हेन द ओल्डर पार्ट्स आर नियर टू सेनेसेंस, जब ओल्डर पार्ट सेनेसेंस के नज़दीक होते हैं तब ओल्डर पार्ट से न्यूट्रिएंट्स माइग्रेट कर जाते हैं यंगर पार्ट में, एंड दे ऑल्सो डिले द लीफ सेनेसेंस, और ये लीफ के सेनेसेंस को डिले कर देता है। एंड नेक्स्ट इज एंड वन मोर थिंग अबाउट साइटोकिनिन, साइटोकिनिन is mainly present in coconut milk that is used in culture media to grow the particular plant by tissue culture to enhance the cell division को enhance करने के लिए। नेक्स्ट इज अब्सेसिक एसिड, अब्सेसिक एसिड ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एंड अब्सेसिक एसिड जर्नली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, और ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा। एंड इट ऑल्सो इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेशन होने से भी ये प्रिवेंट करेगा। इट स्टिमुलेट्स द एंड इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, इसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इनेबल प्लांट टू सर्वाइव इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। एंड व्हाट वुड बी द स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर ए प्लांट, इट मे बी वाटर स्कैरिसिटी, and when there is less amount of water is available for plant, then it should be prevent the water loss, तब पौधे से कम वाटर लॉस होना चाहिए। एंड मेनली वाटर लॉस किसके द्वारा होता है, ट्रांसपीरेशन के द्वारा, और ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है, स्टोमेटा के द्वारा, और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, लीफ की सरफेस पे, एपिडर्मिस पे। तो अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपीरेशन कम होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा दैट मीन वाटर लॉस कम होगा, वाटर लॉस कम होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी में भी प्लांट जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। अंडरस्टैंड? सिर्फ ये स्टोमेटा को क्लोज नहीं करता, इफ देर इज प्रोलॉन्ग्ड स्कारेसिटी ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता, इट स्टार्ट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स,
लीव्स जो हैं वो फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, एंड फोल्डिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड विल्टिंग ऑफ लीव्स। और फिर भी अगर वाटर अवेलेबल नहीं है, प्रोलॉन्ग्ड स्कारिसिटी चल रही है, तो क्या करेगा, इट इंड्यूस द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, ये लीव्स को मैच्योरेशन से पहले ही गिरा देगा, ताकि लीफ की सरफेस से वाटर लॉस कम से कम हो और उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो कम से कम हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इनहिबिट हो जाए। इन दिस वे इट इनेबल द प्लांट टू सर्वाइव इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस, सो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। Understand? It also play an important role in seed development and maturation of dormancy. Means it enable the seed to be in dormancy stage. And what is seed dormancy? To lapse the unfavorable conditions. Unfavorable conditions को पार करने के लिए seed reduces its metabolic processes, वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रिड्यूस कर लेता है, एंड इनहिबिट इट्स ग्रोथ, और अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर लेता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। अंडरस्टैंड? एंड व्हेन देयर इज फेवरेबल कंडीशन, सीड डोरमेंसी ब्रेक एंड इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट हार्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये अकेला गैसियस हार्मोन है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सो इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट इन राइपनिंग फ्रूट्स। राइपनिंग फ्रूट्स और सेनेसेंस पार्ट जो हैं उनके अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। एंड इथाइलिन ऑल्सो प्रोमोट द सेनेसेंस एंड अब्सिशन, ये सेनेसेंस और अब्सिशन को प्रोमोट करेगा। अब्सिशन क्या होता है बेटा? अब्सिशन का मतलब होता है द सेपरेशन ऑफ द सेनेसेंट पार्ट फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से सेनेसेंट पार्ट का सेपरेट होना। जैसे पकने के बाद या येलो होने के बाद लीफ प्लांट से सेपरेट हो जाती हैं, फ्रूट जो है वो भी पकने के बाद प्लांट से सेपरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अब्सिशन। और सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस इज द स्टेज ऑफ प्लांट एट विच इट इनहिबिट इट्स ग्रोथ। जब उसकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, मीन्स रिटार्डेशन शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस। एंड इथाइलिन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ripening of fruit and enhance the rate of respiration during ripening of fruit, and this rise or increase in the respiration rate is called respiratory climactic। जब फल पक रहे होते हैं उस दौरान उनके अंदर रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है विद द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के इफेक्ट से पक रहे फलों के अंदर रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज होता है, एंड दिस इंक्रीज or this rise of rate of respiration is called respiratory climactic। And इथाइलिन also responsible for the breakdown of seed and bud dormancy। ये seed और bud dormancy को भी ब्रेक करेगा। मीन्स जहाँ पे सीड और बड डोरमेंसी स्टेज में है, मीन्स उनके अंदर ग्रोथ इनहिबिट है, मेटाबॉलिक रेट स्लो है, ये उन सीड की डोरमेंसी को जो है वो ब्रेक करेगा। जैसा मैंने आपको बताया था, इथाइलिन के अंदर दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टी भी होती हैं और ग्रोथ इनहिबिटिंग भी होती हैं। तो वन ऑफ इट्स ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टी इज दैट इट ब्रेक्स द सीड एंड बड डोरमेंसी, एंड सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, दैट्स वाई इट इज act as plant growth promoter, but most of its properties are as plant growth inhibitor, so it is included in plant growth inhibitors। it also help in sprouting of potato tuber। आलू की बड से, आई बड से जो आलू जर्मिनेट करते हैं, that is also with the effect of ethylene। ethylene also elongate the petiole in deep rice plant। जो आपने देखा होगा कि जो राइस प्लांट है, उन राइस प्लांट में पानी जो है वाटर होल्ड करके रखा जाता है। ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी राइस जो है वो ग्रो करके दे ट्राई टू रिमेन अबव द वाटर, वो वाटर से ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, उनका शूट। एंड दिस रैपिड इलोंगेशन इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। एंड one more important point about ethylene, that the fruit seller in market
यूज ए केमिकल इथीफोन टू हास्टन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फल विक्रेता होते हैं वो फल विक्रेता अपने फलों को पकाने के लिए एक केमिकल का यूज करते हैं इथीफोन। उससे स्लो रेट में केमिकल रिलीज होता है दैट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू इथाइलिन एंड विच इनहेंस द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फलों के पकने के रेट को इंक्रीज कर देता है।